Yes, we are live. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे। Wish Wow. Music Veranda a very happy birthday. Thank you. Over to you, Thank you, Anila ji. Sanket. Thank you so much. And you started with this beautiful song. This song is very close to my heart. And I just love it. And on this auspicious day, you have started the fifth day celebration, fifth day celebration of this mega celebration of Music Veranda birthday. So I'm so happy a person like you, a beautiful person like you has started this evening. So a little about Music Veranda. I'm Anila Rampuria from Delhi, India, welcoming all to Music Veranda. I'm a mentor to initiatives and entrepreneurs, and I'm also the privileged mentor, founder mentor of Music Veranda. Music Veranda is an initiative that we started in quarantine times when times were very difficult, to take the power of music and connection to many. And we're very happy to share that Music Veranda has helped, healed, and connected a lot of people through music all across the globe. And today we have Sanket and we have Manisha presenting you a beautiful show on love, compassion. So Sanket ke bare mein main kya kahun? He is like, I remember how we got connected with Gaurav Sharma, his classmate. I am classmate जो हैं उनके उन्होंने connect किया था. Gaurav Sharma ji, he's another mentor to Music Veranda, very special to Music Veranda. And that evening Gaurav Sharma ji ka birthday tha, and that evening Sanket came and he sang and he spoke about Gaurav ji, and that's how we got connected. After that, whenever there was some important show and I used to text Sanket, he was always there with his beautiful smile and with his energies, and of course with his music compassion. So Sanket और Manisha के लिए मैं कुछ लिखा है. I would just like to say that मैं वक्त हूँ चलता हुआ, मैं अक्स हूँ बहता हुआ, तपता हुआ सूरज हूँ मैं, चढ़ता हुआ पूनम का चांद, तूफान हूँ आंधी भरा, आवाज हूँ मैं शोर हूँ, मैं नज्म नहीं पूरा मुशायरा हूँ जनाब, अंदाज हूँ शायर भी हूँ, एक टूटा हुआ पल भी हूँ, रोक तू तो बांध भी हूँ, तुम चाह लो महबूब हूँ, तुम ना चाहो तो कोई फर्क नहीं, मैं खुशी हूँ कुछ गम भी हूँ, खिलता हुआ एक पल भी हूँ, तकलीफ मुझे छू न सके, खुशी मुझे बहला न सके, मैं अक्स हूँ मैं आवाज हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हूँ. So this is what Sanket and Manisha are. So they are two rock stars, and Sanket, as I said, he's a blend of intelligence. I am alumni. He's an investment banker, full of creativity, compassion, smartness. He's a YouTuber. He's an avid YouTuber, a very, very successful YouTuber. And rest, I would request Manisha to tell. And Manisha ke bare mein bhi main batana chahti hu, since like we are very happy that through Manisha and to many other people we have reached international. We have gone international. Manisha is from Germany, Stuttgart, Germany. She's big admirer of Music Veranda, a very important part of Music Veranda. And she's a wellness coach working with an American company, a mother of two beautiful children, and she's training them into classical music. Amazing person. And rest, I leave the show to Manisha and Sanket to take it ahead. Thank you, everyone. Enjoy the show. Thank you. Thank you so much, Anila ji, for this energetic start. And today we are going to speak about love. So I want to welcome Sanket ji. Very warm welcome to you, sir. And I also want to welcome all our viewers on FB. So let us start on Sanket ji. He is an investment banker and a private equity investor and has worked in many MNC banks. Sanket Banker is an independent singer, songwriter, performer, and an star YouTuber. He produces original songs as well as covers for his YouTube channel. He has studied classical music in Shankar Mahadevan Academy and is also vocally trained at Belki School of Music. So thank you, and wow, it's really awesome. Some of his achievements include he posted 11 original songs
Wow, sir. And actually, his songs have been featured across media like Doordarshan, Big FM, TOI, Dainik Bhaskar. He has sung in Nepali language with most famous singer. He has recently signed up with French distribution company also. Congratulations. Thank you. And now I would like to request you to share your musical journey and any of your favorite song. So Sure. over to Yeah. you, Sangeet. Thank you so much for the kind words. Anila ji and Manisha ji, thank you so much for the kind words. So my musical journey has been a roller coaster. बहुत ही उतार चढ़ाव वाला मेरा जर्नी है. कभी ऐसा consistently म्यूजिक परस्यू किया ऐसा नहीं है. पार्टली घर के एनवायरनमेंट माहौल की वजह से और पार्टली मेरा खुद का करियर का जो एक पड़ाव था जिसमें मैं करियर के लिए इतना ज़्यादा मैं पम्प्ड अप था कि उस टाइम पे almost 5-6 years I didn't pursue music from between 2008 to 2013 before again I started pursuing it in very diligently. So it's a pretty roller coaster. तो उसकी शुरुआत हुई क्लास 11 से. जब मेरे पिताजी के गुजरने के बाद almost like there was a series of tragedies that happened, मुझे जॉन्डिस हुआ था within 3 months and I was bedridden for 6 months at that time. एंड उस टाइम पे 1996 की बात है. तो उस टाइम पे एफएम रेडियो जस्ट आया था. तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे. हमारे बाहर जो अपार्टमेंट के बाहर जो नाइट वॉचमैन रहते थे वो रात को एफएम चलाते थे फुल वॉल्यूम में जगे रहने के लिए. और मुझे नींद नहीं आती थी. जॉन्डिस बहुत ही खराब था मेरा, तो रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी. उस टाइम पे वो जो गाने आते थे इट वाज सच अ हीलर. आई यूज्ड टू फील एंड आई यूज्ड टू जस्ट नॉट स्लीप. आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स. तब वहां से मेरी शुरुआत हुई. एंड उसके पहले मैं इतना स्टूडियस था, इतना एकेडमिक था. उसके बाद में मैं पढ़ाई लिखाई पे मेरा रुझान हमेशा से था. लेकिन वो जो एक मोड़ आया, that I started listening to some of these old melodies, रफी साहब के, किशोर दा के, मुकेश के, इतने बढ़िया लता जी, आशा जी. I was so mesmerized with those songs. That is the stepping stone. That's where I thought that music is where I need to be. उसके बाद इंजीनियरिंग किया. वो 4 साल भी मैंने काफी म्यूजिक में इन्वॉल्व था. बट उसके बाद जब मुझे नौकरी करनी आई तब जाके आई हैड टू मेक अ चॉइस. एंड मेरी मॉम वाज not too much keen for me to pursue as a career because obviously the security and all the well-being and everything, it's not as easy. It's full of struggles as what people understand. तो उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आप IIM से MBA करोगे तो I will allow you to do music. So that was the condition, which was a very मतलब जैसे असुर लोग देवता से मांगते हैं ना, वैसा एक. तो उसके बाद मैंने IIM किया और वहां पे इतना कंपटीशन रहता है, मैं फिर से रैट रेस में चला गया. और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 years, 5 years of my work and 2 years of my MBA, I actually didn't do too much of music. But then, again, from 2013-14, I started pursuing it in a big way. And then obviously YouTube happened in 2017 when I started my channel. And since then, I also got in touch with my team. I have a very wonderful team, not one, but multiple teams that I work with. So it just went from there. Super. So, Amazing. you. It's so interesting. It's like a story, you were listening like this. Thank you. It's like I just went with the flow. काफी लोग बोलते हैं कि initiative था, but there was a moment where I had to decide career, or there was all the time there was a struggle, career or music, studies or music. But now I have integrated the two. It is career and music. If I want to do music of what I want, मुझे जैसे म्यूजिक अच्छा लगता है, मेरी जो म्यूजिक की लिमिटेड नॉलेज है उसके बेसिस पे मुझे जो करना है, अगर मुझे वैसा करना है तो मुझे ऑटोमेटिकली आई नीड टू हैव दैट रिजर्व आल्सो टू हेल्प मी सस्टेन. तो वही मेरी सीख थी. क्या बात है, बहुत बढ़िया. एक्चुअली यही है कि पेरेंट्स जब कुछ बोलते हैं तब अगर आपके अंदर पैशन हो, और आपके इसीलिए आई थिंक वो भी हो गया, आपका IIM भी हो गया एंड आपका म्यूजिक भी हो गया. तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई वुड से, बिकॉज अगर मैं यंगस्टर के हिसाब से अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जाता तो there is a lot of struggle there, several years का, which I didn't have to face, and I can also do music that I like, which is a great blessing. So I really thank my parents. They are there up there guiding me. I always thank them for the decisions they've made for me. Wow, that's amazing.
रियली अमेजिंग एंड आई थिंक इंस्पायरिंग, बिकॉज कभी कभी जैसे लगता है कि पेरेंट्स कुछ बताते हैं देन आफ्टर दैट, बट लेकिन इट्स गुड कि यू परस्यू बोथ, राइट? सो Yes, नाउ that is like that's the main point, and I would like to request you your favorite song. sure. तो Yeah. तो ये जो प्रोग्राम है, ये इसका मैंने बोला था कि प्यारनामा इसका नाम लिखे, क्योंकि ये मेरी जो अभी एल्बम आने वाली है इसका नाम है प्यारनामा, तो उसका एक गाना मैंने अभी रिलीज किया है 3 दिन पहले। नाम है तुम आए। गाने के बोल और म्यूजिक द रिकॉर्ड्स हाउस ने दिया है, और इसको डायरेक्ट किया है मेरी फ्रेंड पियाना ने, और एडिट कैरोल ने किया है। तो इस गाने की एक 2-3 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मैं गोल्डन एज के कुछ चुनिंदे गाने जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं वो मैं सुनाऊंगा। होप आपको अच्छी लगे ये गाना भी। Isha. तो इस गाने का नाम है तुम आए। Okay. दारा रे रुम रा रे रा रुम दारा रा 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 दारा रे रुम रा रे रा रुम दारा रा 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 रा। आए हो तुम भीगे बारिश में यूं, कहने को तो बहुत है फरियाद, कैसे कहूँ मेरी आंखें थी नम, आती थी मुझको तुम्हारी ही याद। तुम आए बहार लाए, बेबसी में खुमार लाए। तुम आए बहार लाए, बेबसी में खुमार लाए। खुद ही खुद में जलते, दर बदर भटकते, क्यों है नाता मेरा तुमसे इतना गहरा। तुम आए बहार लाए, बेबसी में खुमार लाए। दारा रे रुम रा रे रा रुम दारा रा 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 दारा रे रुम रा रे रा रुम दारा रा 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 रा। वाओ, क्या बात है! Very आपने beautiful. तो बदल दिया बिल्कुल। इतने उतार चढ़ाव है सॉन्ग्स में, ये सॉन्ग में तो सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल हिट है आपका सॉन्ग, तो बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। अब थैंक यू समझ सो में आ मच। रहा है इतने फॉलोअर्स कैसे हैं आपके यूट्यूब पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत सारी धन्यवाद। मतलब मैं करता रहता हूँ, अभी कुछ गाने मैंने बनाए हैं, जैसे अब तक 11 गाने बनाए हैं, बट ये वाला जो गाना है और इसके साथ और 3 गाने हैं जो आने वाले हैं। ये पूरा एल्बम को मैंने प्यारानामा नाम दिया है, बिकॉज दीज हैव डिफरेंट शेड्स एंड इमोशंस ऑफ लव। ये जो है एंटिसिपेशन का है, एंड एंटिसिपेशन मतलब बिफोर फॉलिंग इन लव यू आर लाइक लुकिंग एवरीवेयर, वेयर टू फाइंड लव, एक बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो ये उसी मूड का है, वेयर द हीरो इज बीन प्लेड बाय अ like we got lucky through Piana. We got in touch with a star of the Bengali movie industry called Aryan, and also an actress from South industry called Megha, and a tele actress from Calcutta called Nandini. So the 3 of them have acted so well in this video. So I'm really glad that you like the song, and I'm hoping that this song reaches the hearts of people. Yeah, Sanket, you share me the link on WhatsApp, so I'll share it on Facebook page so that viewers can also see this, And I would just like to say, Sanket, जो अपनी host है, she is very musically accomplished, So she's a Sangeet Visharad in Hindustan classical music, and she's trained in light music. She has participated in Saregama, Close Up Antakshari, and some other shows on Zee TV and Star Plus. She's part of a few Akashwani programs, worked with Zee TV creative team, and she has recorded tracks for devotional Hindi music cassettes. So that's the level of this show.
two rock stars. Over to you, Manisha. Yes. थैंक यू। तो ये सॉन्ग हमने सुना एंड आई रियली लाइक इट एंड मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। जैसे अनिला जी ने बोला, अभी वो लिंक शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सब एफबी व्यूअर्स जरूर सुनिएगा ये सॉन्ग, बहुत बढ़िया सॉन्ग है ये। एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू संकेत that you have 100,000 plus subscribers on YouTube and close to 6 million plus views. So how did you achieve all this? Can you share that journey of YouTube? Yeah, so it's a very funny thing. तो YouTube का मेरा पहले फोकस नहीं था, मैं भी कैमरा शाई था, I was not at all confident to come in front of camera. In fact, क्या हुआ था, मैंने फेसबुक पे ऑलमोस्ट 2017 की बात है, ऑलमोस्ट 4 साल पहले फेसबुक पे मैंने एक मेडली डाला था, ऐसे ही सिंगिंग विदाउट लाइक, जैसे मैं गाता हूँ, मैं कराओके ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू गाता हूँ, तो ऐसे ही मैंने कुछ 6-7 गानों के जिसमें योडलिंग थे, ऐसे 6-7 गाने मैंने क्लब करके एक मेडली बनाया था और ऐसे ही गा दिया था फेसबुक में। वो गाना काफी हिट हुआ फेसबुक में, मेरे पेज बनाया, काफी ऑलमोस्ट 7 लाख व्यूज इट गॉट इन एट दैट टाइम। दैट्स व्हेन आई थॉट दैट अभी मुझे अगर कुछ अच्छे म्यूजिशियंस मिल जाए, एक अच्छा टीम मिल जाए, तो मैं कुछ करूँ, एंड इट वाज गॉड्स ब्लेसिंग दैट मुझे अच्छे अच्छे टीम मेंबर्स मिल गए। मेरे एक दोस्त हैं, बेनो उनका नाम है, उनके साथ में मैंने बहुत काम किया है, और बाकी बहुत सारे म्यूजिशियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट इन टच। तो ये जर्नी जो है मतलब एकदम हिट एंड ट्रायल, मतलब ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं था, कुछ नहीं था। अभी काफी सारा कुछ पता लगने लगा है, पूरा नहीं पता, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे कवर गाने बनाए, काफी सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाए। It's been a very, very lovely journey, lot of learning that I got on the way. So yeah, that's how it happened. Wow, that's a great achievement. Thank you, thank you. तो इस बात पे एक सॉन्ग तो बनता है, तो अब कौन सा इमोशन लेके आ रहे हैं आप? Sure. So while I was talking about anticipation, I'll just hum a few lines of this legendary song. It's it's sung um, by Hemant Kumar ji, and the composition is by Barman Dada, SD Barman Saab, and the lyrics have been written by Majru Sultanpuri Saab. So I'll hum a few lines of this song. It's one of my favorites. है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Da 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 da। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Wow, superb. Thank you. So my very favorite number. Thank you so much for singing this one. Amazing. Thank you so much. Sanket, I would like to ask you that who is your favorite singer or artist, and any memorable your कोई आपके इसमें कुछ मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो हम सब व्यूअर्स के साथ? श्योर। तो जैसे मैंने कहा कि 1996 में जब मैं बेड रिडन था, उससे मेरा आगाज हुआ था म्यूजिक का। तो एक जो मुझे वॉइस बहुत ही मतलब एकदम मतलब, वैसे तो सारे लेजेंड्स हैं जो 60s to 90s, 60s to 80s जिन्होंने गाया था, दे वर ऑल लेजेंड्स, और सबके गाने हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बट स्पेसिफिकली किशोर दा इज माई आइडल, माई ऑल टाइम फेवरेट। आई वुड से इट्स जस्ट बिकॉज उनके मेजोरिटी गाने मुझे अच्छे लगते हैं, रादर देन
एनीथिंग एल्स, कि रफ़ी साहब के भी बहुत गाने अच्छे लगते हैं। तो किशोर दा का मुझे याद है, मैं उस टाइम पे एक गाना मैंने सुना, अ, मेरे महबूब कयामत होगी। नाउ दिस वाज सच अ हॉन्टिंग सॉन्ग फॉर मी। मैं वो, मतलब उस टाइम पे तो इतना नहीं था कि नेट पे सर्च किया और गाना आ गया। किसने उस टाइम पे रियली आपको, मैं क्या पेन पेंसिल में लिख लेता था, और कहीं पे आप दुकान में जाओ तो उनको भी वो पूरा पूरा, मतलब पूरे कैसेट्स मिलते थे, अलग से आपको गाना वैसे मिलेगा नहीं। तो हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर जो कॉलेज था, कॉलेज के बाहर एक दुकान था, वहाँ पे एक कैसेट पे आपको, आप अगर 10 गाने लिख के दे दो, आप वो राइट करके आपको दे देता था। तो ये जो गाना था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड कि एक जो सिंपल सा गाना इतना इमोशनल कैसे हो सकता है। नाउ दैट इज वेयर आई रियली गॉट, एंड ऐसे रफी साहब के बहुत सारे गाने हैं, मुकेश साहब के बहुत सारे गाने हैं, लता जी, आशा जी। पर ये जो गाना था, इट वाज सच हॉन्टिंग, द मूवी इज आल्सो अबाउट हॉन्टिंग स्पिरिट, और लाइक अ pseudo spirit, but ये गाना that actually changed me totally. So Kishore Da is my all time favorite. सो एक किशोर दा का एक सॉन्ग हो जाए। Sure. So I'll also move on to the next phase, where it comes to proposal, where a guy proposes or a girl proposes to a boy. Generally, it's a boy proposes to the girl. So this song is like a legendary of that particular mood. I'll sing a few lines of that song. It's sung by Kishore Da, and the music is by Pancham Da, and the lyrics is by Gulshan Bawra ji. क्या बात। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। इसके साथ में एक मेडली, एक और गाना ऐड कर देता हूँ, बिकॉज दैट्स ऑफ द सेम मूड। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर है हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। ये गाना है शैलेंद्र सिंह जी की, एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ये धुन है, और आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए गीत है। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह। मैं एक एक्चुअली फरमाइश करना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बिफोर दैट मनीषा जी, मैं आप चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाएं। आपकी वॉइस मैंने सुनी है बहुत बार, मैं म्यूजिक वेरांडा में मैंने आपको सुनी है। व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, एंड आई एम यू हैव सो मेलोडियस, प्लीज गो अहेड एंड सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, माय रिक्वेस्ट। ओके ओके। तो चलिए मैं एक आशा जी का सॉन्ग सुनाती हूँ। थैंक यू।
ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यार तेरा बच के जाना, तद तद ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, जान के बदले में जान लो नजराना, तत तत ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना. थैंक यू. थैंक यू. Wow, Wow, amazing, wonderful. amazing. Very nice, Manisha. You have set the party mood. Yes. बिल्कुल बिल्कुल एकदम पार्टी मूड बन गया. Yes. So, Sanket, can we have some more numbers from you? बहुत मजा आ Sure. रहा है. You have made I want एक फरमाइश करना चाहती हूँ संकेत जी. मैंने एक आपका हाँ, वीडियो देखा है, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, Oh, Wow. गा दीजिए थोड़ा. that's my favorite song also. And I've seen Sanket's video also. Right. Just 1 second, हाँ. Yeah, मुझे sure. अभी 1 सेकंड में लिरिक्स देख लेता हूँ. This is a थोड़ा सा- surprise. Yes. तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, न मुझको खबर न तुझको पता, दूर 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 दूर. Wow, thank you. Amazing, beautiful. Thank you so much. Sanket, you enjoy singing, you know, इतना अच्छा लगा आपको देख के. You get into the song. That's beautiful. Over to you, Manish. Yeah, thank you so much संकेत. And अभी अब कौन सा इमोशन लेके आ रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो मैंने अरिजीत सिंह जी का एक गाना गाया है, तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद अ फ्यू सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत. सो आई हैव अ मेडली ऑफ 2 songs. Wow. So I'll give the credits after I sing the song. So I'll just club the 2 songs. So here it goes. छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, छूटे या न छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना,
बोलना माही बोलना, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरेता तुर पे मेरी असा, जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा वाकई मैं तेरे बिना लगदा जी। Wow. पहला गाना I'll just give the Incredible. credits to, तो पहला गाना बोलना, the song was by Tanishq Bagchi and the lyrics is by Dr. Devendra Kafir ji. Second song Samjhava, obviously both of them are by Arijit Singh, sung by Arijit Singh. Music for the second one is by Sharif Toshi and Javed Ahmed, and lyrics is by Kumar and Ahmed Anis. Wow. Beautiful, beautiful. Thank you. Sanket, as you know, today we are celebrating Music Veranda birthday. So, would you like to share something about Music Veranda and some songs? Sure, sure. So it's been such a lovely journey. I remember अनिला जी ने भी बताया कि गौरव शर्मा मेरे क्लासमेट, उनसे मेरा आगाज हुआ. बट आई हैव बीन विद म्यूजिक वेरांडा फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स नाउ. इतना अच्छा आप लोगों का इनिशिएटिव है. आप लोगों ने क्वारंटाइन टाइम्स में आज ही के दिन लास्ट ईयर ये स्टार्ट किया था. इतना नोबल इनिशिएटिव है जिसमें सारे एज ग्रुप के जो भी म्यूजिक के म्यूजिक के जो पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, एनीवन हु इज इन्वॉल्वड इन दैट कम्युनिटी ऑफ म्यूजिक, आपने सबको साथ में एक साथ एक मंच पे लेके आए हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको गाने के लिए और साथ में आने के लिए, जुड़ने के लिए ऐसे सिचुएशन में जहां हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं. सच अ नोबल इनिशिएटिव. आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट this particular initiative by Anila ji, Gaurav ji, and the entire team who's behind this, and all of Manisha and everyone who's been on all the shows. I extend my gratitude for this really noble initiative that you've done, and congratulations once again for completing a year. It's been a terrific journey for all of you guys, and every time I hear the youngsters and all the kids, and even the people across ages and across cities, across countries, coming in a single platform to perform, it's so overwhelming. Such a great initiative. Congratulations and kudos for the effort. Thank you, Sanketji. And few more, we would like to listen some more songs from you. So, Sure. On any theme, yeah, Pyar Nama, you can sing. Sure. तो अभी तो proposal हो गया, तो अभी now I'll go for rejection first because that's like a bigger probability thing. तो रिजेक्शन के गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, और पर्टिकुलरली किशोर दा के जो सैड सॉन्ग्स है, somehow it just touches the chord so deep. तो मैं एक गाना गाने वाला हूँ. ये बहुत ही प्यारा गाना है, मेरे दिल के बहुत करीब है. इट इज बाय none other than R.D. बर्मन साहब एंड मजरू सुल्तानपुरी साहब. तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ इस गाने. तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के,
जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे, मेरी भीगी भीगी सी। वाओ, Ultimate. अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये विदाउट कराओके जब हम लोग गाते हैं तो जैसे कराओके होता है तो म्यूजिक के ऊपर बहुत सारा ध्यान रहता है, लेकिन मुझे लगता है इतना स्वीट और इतना पूरा स्वर के ऊपर मेरे ध्यान पूरा आपके स्वर के ऊपर जा रहा है, एंड इट वाज रियली अल्टीमेट। सो थैंक यू सो मच। और जैसे आपने रिजेक्शन का बोला है तो एक दो लाइंस मैं भी गा देती हूँ रिजेक्शन की, उससे मुझे एकदम से याद आया कि ये भी एक बिल्कुल। हो सकता है इस थीम पे। सो मेरे फेवरेट सिंगर है सोनू निगम जी, तो उनका एक मैं जस्ट 2 लाइंस गाती हूँ। दिल कैसा बेपीर है, वो एक तस्वीर है, मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है, कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूं, कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। थैंक यू। Wow, Manisha, ultimate. So I'm just enjoying both of you singing. Yes. Amazing. So So Sanket, Sanket, yeah, बस carry on. सो एक रिजेक्शन पे मैं और एक गाना मैं पेश करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज बाय मुकेश जी। इनके बहुत सारे सैड सॉन्ग्स है जो बहुत ही दिल को छूते हैं मेरे। तो ये जो नगमा है ये शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध है और हसरत जयपुरी जी के नगमे हैं, एंड इट गोज लाइक दिस। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट है ये सॉन्ग, और इसमें खो जाते हैं जैसे ये सॉन्ग में। तो जैसे रिजेक्शन हो गया तो रिजेक्शन के आगे का इमोशन क्या है संकेत जी, मैं जानने के Yes, लिए। so let's get back to कभी कभी लक जब साथ में रहता है तो एक्सेप्टेंस भी हो जाता है, रिएक्शन रिजेक्शन हमेशा नहीं होता है। सो आई विल सिंग अ सॉन्ग बाय रफी साहब, and this is by Barman Dada, and Shailendra ji is the lyricist of this song. It's from the movie Guide, very very favorite song of mine.
तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना, वो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। वाओ, Beautiful, lovely. रेणु जी, आपकी कोई फरमाइश है? चला जाता हूँ। संकेत जी प्लीज, चला जाता हूँ। एक संकेत जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही। और आप बिना म्यूजिक के भी आज जो गा रहे हैं, मजा आ रहा है। हमने म्यूजिक के साथ सुना, आज तो बिना म्यूजिक के तो और मजा आ रहा है। सो थैंक्स अ लॉट। I am so blessed. मनीषा, बहुत मजा आ रहा है शो में। I'm so glad, so Thank you honored. so much. Thank you. चला जाता हूँ, ये गाना आज मेरा एक्चुअली गला थोड़ा बैठा हुआ है। नहीं, मेरे मैं लास्ट दूसरी रिलीज की वजह फरमाइश से मुझे देती हूँ। बहुत ज्यादा मुझे बात करनी पड़ी है लास्ट 2-3 दिन से, बट स्टिल आई विल ट्राई अ फ्यू लाइंस। अगर भूल त्रुटि हो गई तो माफ कर देना। नहीं, मैं दूसरी फरमाइश दे सकती हूँ, मेरे पास तो भंडार है। नहीं, मेरा फेवरेट, लेट मी ट्राई। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने लिए, हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वाह, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। थैंक यू। वाह, सुपर। मनीषा जी, आप कुछ और गाना चाहती हैं? ओके, हाँ बिल्कुल, मनीषा आप भी कुछ सुनाइए, प्लीज। यस, गाइए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, 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 कहीं ये
कहीं ये वो तो नहीं, 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 कहीं ये वो तो नहीं। संकेत जी, ये आपका फेवरेट सॉन्ग है, आई नो दैट, सो आई डिसाइडेड मदन टू मोहन जी का है, राइट? दिस वन, बहुत बहुत वाओ, अच्छा दिस गाया इज वन ऑफ माय मनीषा। फेवरेट्स। आज की जनरेशन शायद ये गाना उतना सुने नहीं, लेकिन ये जो गाने हैं मदन मोहन जी के, पर्टिकुलरली इतने इतने, लता जी, मदन मोहन जी के, जो अभी सिर्फ वीर ज़ारा में लोग सुनते हैं मदन मोहन जी को, बट वो एक जमाना था। अमेजिंगली सॉन्ग मनीषा जी, अमेजिंगली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। नाइस। और आई एम सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन जब मनीषा आई थी म्यूजिक वरांडा में, उन्होंने सबसे पहला यही गाना गाया था, और उसी दिन से हम इनके फैन हो गए थे, और उसी दिन से हमने इनको लता मंगेशकर ऑफ एमपी बोल दी। बिल्कुल ओवर टू यू बिल्कुल मनीषा। बिल्कुल। तो हमें अभी, सो आई थिंक वी हैव जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट या फॉर दिस शो। सो एक गाना जो मैं करना चाहता हूँ, दिस इज लाइक द कल्ट रोमांटिक सॉन्ग किशोर दा जी का, एंड यू नो अगेन द हिट डुओ पंचम दा, किशोर दा एंड मजरू सुल्तानपुरी. So let me hum a few lines of this song, and then we can take it from there, and we can move on, because today is a power-packed day, first year anniversary, birthday of Music Veranda. So we are looking forward to all the programs that are lined up after this. So let me sing a few lines of this, and then we can take it forward from there. आपका अरमां, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। क्या बात है, आज तो सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग गा दिए आपने, थैंक यू सो मच। Thank you And so much. I think, Thank you so much. I think we'll have to, you know, Anila ji. No, I no. think we. I have a few curious questions. You know, I'm wanting to ask them. ये कैसे YouTube के सरताज कैसे बने आप? ये समझना, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन चीजों पे आप काम कर रहे हैं? These two questions from me. Sure. So YouTube journey ऐसे मतलब almost 3.5 years लगा है. फिर भी I was very lucky that I got, you know, all the right teams, and you know content भी बना, मुझे teams मिले कि मैं content बना सकूं. तो वो एक जर्नी है. पर एक जो चीज है, I think it's always important to take the first step. You know, every day थोड़ा सा अगर भी हम करें, क्योंकि वो right moment, right opportunity, right circumstances कभी होता नहीं है. ये एक चीज मैंने सीखी है, you know. तो इसीलिए जो भी सिचुएशन है उसमें अगर हम एक छोटा सा, बिल्कुल भी छोटा सा भी एक कुछ करें उस फील्ड में, यू नो, म्यूजिक का अगर मैंने एक छोटा सा भी कुछ आज किया, दैट विल टेक मेनी, यू नो, लुकिंग बिहाइंड, वो लगेगा कि उस वजह से, उस छोटे से एक स्टेप की वजह से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे, यू नो, टीम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज दिख जाते हैं. वैसा ही हुआ है. देयर इज नो, यू नो, जैसे मैं बढ़ता गया वैसे मुझे और लोग आते गए, यू नो, उनसे टिप्स मिलता रहा, यू नो, उनके साथ कोलैबोरेट करता रहा. यू नो, कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा इसमें, यू नो, बहुत बड़ा इसमें योगदान है. तो ऐसा ही है, वो कारवा चलता गया. एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव, you know, so nice teams with me. I have had Music Veranda also such nice, and I'm looking to collaborate with quite a few of you, you know, in the near future. So you know, it's so nice to be as part of this platform. So that's on my YouTube journey. And in terms of my future projects, so there are quite a few. In fact, we had done a lot of songs last year, and because of the lockdown and everything else, we couldn't release a lot of those. तो ये प्यारनामा तो है ही, जो जिसमें 4 गाने हैं,
पर इसके अलावा भी मेरे कुछ और गाने आने वाले हैं। एक मैंने एनवायरनमेंट पे एक सॉन्ग बनाया है, जो मैं एनवायरनमेंट पे जो आई थिंक जून 6 को आता है, उसमें रिलीज करना चाहता हूँ। देन देयर इज अ सॉन्ग ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग पे एक गाना बनाया है मैंने। तो ऐसे सारे बहुत सारे गाने हैं जो मेरे पाइपलाइन में है, एंड आई एम लुकिंग टू रिलीज, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट द सॉन्ग रीचेस द ऑडियंस and it touches a chord in people's hearts. That's all my prayer is. Amazing. And Sanket, first time I came to know about you, जो आपने अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाया था. Share something about that. Sure. So that is like a memorable moment. तो 2005 की बात है, मैंने KBC 2 में पार्टिसिपेट किया था. एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने KBC 1 में बहुत ट्राई किया, तो मेरा हुआ नहीं ऑब्वियसली. KBC 2 में मैंने नौकरी छोड़ी थी और मैं IIM के ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहा था. तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम था, मैं ऐसे ही मतलब टाइम पास मोड में था. उस टाइम पे वो आया था, मैंने बहुत सारे एसएमएस किए थे, मुझे याद भी नहीं है कितने एसएमएस किए थे. शायद मेरी 1-2 महीने की सैलरी मैंने उड़ा दिया था उस पर. तो अचानक से मैं उस टाइम पे IIM में था, मुझे कॉल आ गया, एंड देन देयर वाज वेरियस राउंड्स. सो फाइनली आई गॉट इनटू द हॉट सीट, सब कुछ करके. एंड दैट वाज, आई वाज शेकिंग लाइक दिस. जितना कॉन्फिडेंस था कहाँ निकल गया पता नहीं. इट वाज सच ए मोमेंट, एंड टू बी इन फ्रंट ऑफ अमित जी, अमिताभ बच्चन जी, एंड तो मैंने एक रिक्वेस्ट की उनसे, सर मैं एक गाना गाऊंगा आपके सामने, आपका एक गाना, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, प्लीज गिव मी परमिशन. And he was so nice. In fact, he just told me कि calm down. He asked me to, थोड़ा सा मुझे बोला कि you are doing great, don't worry. फिर मैंने थोड़ा nerves पे थोड़ा काबू किया, and I sang a song, छूकर मेरे मन को. And he said I sung well, and that was, a $1 million uplabdhi, $1 million achievement from me, and it's one of my most cherished memories. And I'm so blessed to have that in my life. Yes. Wow. Thank you so much. I was very curious to ask that experience. I saw that Gaurav ji, You remembered, yeah, that's great. Gaurav ji had told me, and I went to your page and I looked for it, and I was like, I saw that video. It was amazing, you singing that song. Will you like to sing that for us? Sure. It's such an amazing song. I'll hum a few lines. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. Phenomenal, lovely. I wish Thank you. we could hear more of it. It's a beautiful song and sung so well by you. Or Manisha, Yes. is there anything in your Pandora box? More questions, or can we wrap up the show? Yes, now we can. We can wrap up. Okay. One last question, Sanket. You are an investment banker, and like you are in the rat race, and still you manage. So this is a very important. You manage time for your passion, and you're doing it so beautifully. And your intention is very beautiful. It's just not कि मैं गा रहा हूँ popular होने के लिए. I think you are singing because you want to touch various things. You're singing for environment. You're singing for mental health. तो ये कैसे? Is there some can you give us a message on this day? Yeah. ये actually this happened in 2014. तो उसके पहले ऐसा था कि one directional था, either ये करना है और वो करना है. But there was a realization, there was a point where I realized that I can do both, और ऐसा नहीं है कि टाइम मिल गया. शुरू में बहुत ही मुझे खुद पे विश्वास नहीं है. I am myself not confident. बाकी लोगों का भी मुझ पे विश्वास नहीं है. ऑफिस की भी प्रेशर है, सब कुछ इतना सारा जो ऐसे ओवरवेलमिंग लगता है शुरू में. पर जैसे मैंने कहा, एक छोटा स्टेप लेके अगर हम लोग आगे बढ़े, वैसा ही एक से एक एक तार जुड़ते गए, एक कड़ी बनती गई, और वैसे ही हुआ जर्नी. एंड टू एन एक्सटेंट दैट नाउ people in my office appreciate what I do, and it is actually complimentary. At one point in time I used to hide, and that's partly the reason why I
sing under my pseudonym, Sanket Banker, because I was myself shy, not confident, confident in front of camera, not confident of my voice, but I practiced. I did some small steps, was very lucky and blessed that God gave me the teams, God gave me good coaches, good mentors, good platforms, and God gave me YouTube and all that people who helped me along the way, and it just happened like that. But abhi मैं आज की बात करूं तो I'm able to handle it very efficiently. I'm able to do, because I have understood the power of teams. जो टीम का पावर है वो एक इंडिविजुअल में कभी नहीं हो सकता. हम लोग इतने स्ट्रेस में आते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि कितना करना है, कितना करना है, कितना करना है. नो, बट एक बार आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लो तो आपके साथ जो जुड़ जाते हैं, दैट इज अ मैसिव फोर्स एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड विद दैट फोर्स. तो मेरा भी मैसेज है कि मैं मेलोडियस सॉन्ग्स, मेलोडी दैट कैन हील द हार्ट, दैट कैन टच द सोल. जैसे मैं बीमार था और मुझे बीमारी से मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं बीमारी से कब ठीक हो गया. I lost a year. That year I was a topper and I lost a year that year because of jaundice. But still, because these songs were there with me, it made such a healing effect on my life. And I want to share that healing effect. Now, somewhere that kind of effect of music is dwindling. उस तरह के गाने, उस तरह का मैसेज आज उतना आ नहीं रहा है. इसीलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं जहाँ जिस मुकाम पे हूँ कि मैं एटलीस्ट नौकरी भी करता हूँ, I don't have to actually do whatever is the trend. I can do something which touches my heart and which is core of my of my identity. तो यही मैसेज मैं सबको पहुंचाना चाहता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि लोग अच्छे गाने सुने, लोग ऐसे म्यूजिक वेरेंडा जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े, अच्छे गाने जहां पे बजते हैं, अच्छे गाने गाते हैं, पुराने गानों की बातें होती है, क्लासिकल म्यूजिक की बात होती है, ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े और जनरली जस्ट जो ट्रेंडिंग है उसके बाहर भी गाने सुने, तो पता चलेगा कि हमारी जो म्यूजिक है वो कितनी वास्ट है और कितनी एक्सपेंसिव है. Wonderful. Yes, thank you. और मेन आई थिंक खुश रहें, दैट इज व्हाट संकेत और मनीषा को देख के लगता है कि खुश रहना बहुत जरूरी है गाने के साथ साथ. So Manisha, it has been a beautiful evening. I really don't want कि ये शाम खत्म हो, लेकिन we have another show lined up and which is a very very important show for us because that's the Music Veranda celebration at 8 p.m. So we have to come back. जल्दी जल्दी खाना बनाना है, खाना है और वापस आना है गाना सुनने के लिए. So Sanket, thank you so much. Thank you. It's been wonderful. So much for having me. Yes.